all have Gita base. Om Jnana-timirandasya Jnana-jnana-shalakaya Chakshurumilitam yena tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam yena bhutale Swayam Rupa Kadamayyam Dadati Swapadantikam. Vandeham Shri Guru Shri Yudapadakamalam Shri Guru Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sudagana Raghunatam Vidantam Sajivam Sadvaitam Savadrutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Saranagana. He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tartakachara Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Krishnanuskute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhyasya Kripasindhubhyo Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So I welcome all the devotees for our regular Sunday session for youth. So we are going to start with the new chapter today, right? 13. Last Sunday we completed 12th chapter. How many of you were there for the whole 12th chapter? How many of you were there for the half 12th chapter? Okay. How many of you were not there for 12th chapter? So many. Where were you? 12th chapter. So, anybody remembers any point from 12th chapter? We can share. Different levels of bhakti is mentioned. Okay. What else? Yes. Who is more dear to Krishna? Who is more dear to Krishna? Okay, very nice. Arjuna asked the Lord that who is the devotees of the Krishna? Those who worship the personal form of the Krishna or the Then Lord answered the question that those who are worshipping great faith, they are very dear to me. And those who are worshipping impersonal Brahma, they will attain me, but at the last, they will attain me. Okay. So Arjuna asked which one is best? Worshipping your personal form or believing in impersonal form? So what did Krishna answer? Which one is best? Worshipping personal form is best. Impersonal form Krishna doesn't deny. He said, okay, fine. Those who believe in impersonal form of mind, they will also attain perfection, but at a longer route, at yeah, a rocky road. Yes, it will be very difficult. The path is very difficult, and it is not guaranteed. Also, they might fall down also. But this path is very simple. Krishna says, personal, believing in personal form. But you will see in this world there are many people who believes in the impersonal form. Mayavad, they say, Mayavad. They don't believe in Krishna's personal form. But in Chaitanya Charitamrita, Krishna, the same Krishna in the form of Chaitanya Mahaprabhu, he speaks differently. Here Krishna says okay, but Chaitanya Mahaprabhu doesn't want to look at their face. Doesn't want to look at their face. Doesn't want to look in the direction where Mayavadis are there. Those who don't believe in the in Krishna's personal form. Those who believe that Krishna is not God, he is just a person who is representing God. And Krishna, when he says Sarva Dharmana Paridesha Mam Ekam Sharanam Vraja, that means he is saying that the one within, if that super soul is there, you have to surrender to that, not Krishna.
So they don't believe in Krishna's pastime, they don't believe in Krishna's form. They say that it is all Maya, it is all false. So Krishna in the form of Chaitanya Mahaprabhu, he says that they are offenders. Chaitanya Mahaprabhu says they are, how dare they can say like that, that I don't have legs, I don't have eyes, I don't have a face, I don't have a body, I don't have hair, I have such a beautiful body, but they cut my body into pieces. These Mayavadis, I will tear them into pieces, their body only. So Chaitanya Mahaprabhu is very heavy in Chaitanya Charitamrita, Chaitanya Bhagavad we see. But here Krishna says, okay, they will attain with lot of difficulty. So Krishna is not very much pleased by this impersonal worshippers. He is not very pleased. It is given to demons also. Even demons attain impersonal liberation, according to Srimad Bhagavatam. Which is that person who always used to give bad words to Krishna? Shishupal. When his head was cut, where his soul went? His soul went into the body or merged into that impersonal Brahman. So impersonal liberation is given to demons also. Not a very big thing to achieve. Krishna, you are enemy of Krishna, you fight with Krishna, still you attain impersonal liberation. It is not a very big thing. But personal thing, in the sense, worshippers, they attain the abode of Lord Krishna, where you can see Lord Krishna face to face. You can talk to Lord Krishna. You can see the beauty of Lord Krishna, and his beauty is so much, that Krishna also gets sometimes खुद ही ये हो जाता है, क्या बोलते हैं उसे, mesmerized by seeing his own beauty. आईने में या तो कहीं पानी में अपना खुद का उन्होंने रिफ्लेक्शन देखा तो कभी कभी वो भी एकदम ये हो जाता है, इतना ब्यूटीफुल कौन है, अरे ये तो मैं ही हूँ. So Krishna also sometimes get mesmerized with his own beauty. Madan Mohan Mohi. So Krishna is also called as Madan Mohan. He attracts the Cupids. Cupids are the most beautiful in the whole creation. They are the most beautiful person. But even those beautiful Cupids, they get attracted to Lord Krishna's beauty. Oh, itna beautiful Krishna. So Krishna doesn't like he इतना मेरा इतना अच्छा सुंदर बॉडी है, रूप है, और ये मायावादी लोग उसको काट डालते हैं, फिनिश कर बोलते हैं ये सब गलत है, ये सब फॉल्स है, उनका पास्ट टाइम्स भी फॉल्स है. जब ये मटेरियल वर्ल्ड खत्म हो जाएगा, कृष्ण भी खत्म, उनके पास्ट टाइम्स भी खत्म, और सब खत्म, और सिर्फ एक ही रह जाएगा, वो है इम्पर्सनल लिबरेशन, दैट इज ज्योति. वही बचेगा और कुछ नहीं बचेगा जीवन में. तो दे आर ऑफेंडर्स, वेरी बिग ऑफेंडर्स. तो चैतन्य चरितामृत में लिखा है वो हेल में जाएंगे वो लोग, बिकॉज दे ब्लास्फेम कृष्ण. इम्पर्सनल लिबरेशन में कभी कभी समटाइम्स they claim themselves also as God. Namo Narayan. Namo Narayan. Namo Narayan. You are Narayan, I am Narayan. Their concept is like that. When we will die, everything will be one, that is Narayan. We all are Narayan. But our Gaudiya Vaishnava philosophy is like two. There is soul, there is super soul. But Mayavadis, they believe that only one, that is soul, and that is one only. You all are one, I am one, everything is one. Lord is also one. So it is not like that, which we will learn in this Bhagavad Gita. So first 6 chapters they talk about Bhagavad Gita. It talks about Karma Yoga. So Krishna, you can attain perfection by doing this Karma Yoga, and little bit of bhakti is added. Then the middle 6 chapters, Krishna specifically talks about Bhakti Yoga. And the last 6 chapters now, which we are going to start from today, 13 to 18, they are Gyan Yoga. So this Gyan Yoga, now it is said,
it is said like it is like a sandwich. ऊपर एक ब्रेड, नीचे एक ब्रेड, बीच में पूरा मेन मसाला है, मेयोनीज डाला है, सब वेजिटेबल्स डाला है, चटनी डाला है, सब मस्त मेन आइटम बीच में। ऊपर का ब्रेड खाने दिया तो ये भाग ऊपर का, तू नीचे का ब्रेड, तो उसमें मजा नहीं है। सो बीच का जो है वो मेन है। दैट इज कृष्णा हैज वेरी इट इज प्रोटेक्टेड इन बिटवीन दैट भक्ति योगा पार्ट। सो जो लैडर है भगवत गीता, जो भक्ति मतलब जो लैडर है, इसमें ऐसा आता है कर्म, ज्ञान, अष्टांग, ध्यान, फिर बाद में लास्ट में आता है भक्ति योग। लास्ट में भक्ति योग आता है। सो वी आर वेरी फॉर्चुनेट दैट वी गॉट कनेक्टेड टू ISKCON and we got connected to Srila Prabhupada. His teachings, you can see in Bhagavad Gita, it is written as it is. Nowhere in Bhagavad Gita it is written like that, as it is, but Prabhupada is written as it is, because Prabhupada knew that many people, commentators, they have commented on Bhagavad Gita, but they have poked their nose in somebody's business. When Krishna wants to present something, they are poking their nose and they completely dilute the teachings of Krishna. The philosophers, they have written. Person in the jail, sitting in the jail, and he has written commentary on Bhagavad Gita. Scientists, they have written commentary on Bhagavad Gita. Ordinary person, they have written commentaries on Bhagavad Gita. But if you read their commentary, nobody's heart will transform. You will read, but you will not understand. Krishna says, Bhakta mam abhijananti, means only devotees can understand this secret. Only devotees. Nobody else can understand. And it is this, that's why this Bhagavad Gita written by Prabhupada all over the world. Millions and millions of life got transformed by reading this Bhagavad Gita. बाकी की भगवद गीता है, कितने लोगों ने पढ़ा, इसका क्या हुआ? कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। पढ़ा और खत्म हो गया। हाँ, मैंने पढ़ लिया भगवद गीता, मैंने पढ़ लिया भगवद गीता। कितने लोग बोलेंगे आपको, जाओ बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ये हमारे पास है, पढ़ा, हाँ मैंने पढ़ लिया उसको, लेकिन कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है उनके लाइफ में। So this is very secret. Raj Vidya, Raj Guhyam, Pavitram, Nidam Uttamam, Pratyakshavagam Dharmyam, Susukham Kartumate. This is Raj Vidya, king of knowledge. Raj Guhyam, secret of knowledge. Pavitram, it is the purest. Nidam Uttamam, and it is the best. Pratyakshavagam Dharmyam. Pratyaksha, you can experience it by practical experience you can have. Pratyaksha avagamam dharmyam susukham kartumavim, and it can be joyfully performed. Krishna said joyfully. Boring नहीं है भक्ति, boring नहीं है, बहुत ही dynamic है, fascinating है. You can enjoy doing bhakti. Bhakti is not boring. Krishna himself said. अगर किसी को बोर हो रहा है, that means वो भक्ति नहीं कर रहा है, टाइम पास कर रहा होगा कुछ तो। But Bhakti, Krishna says, Sukham kartum avim. The person will be happy being in this material world. Dukhalem ashashvatam. Being in this material world, he can be happy. So now the question arises. Already Krishna spoke about Bhakti Yoga. 12th chapter में पूरा बोल दिया कि ये मेरे को प्रिय है, ये मेरे को उससे ज्यादा प्रिय है, ये मेरे को सबसे ज्यादा प्रिय है। Krishna already spoke all these things. फिर बाद में ये ज्ञान योग का क्या जरूरत है? So, देखो, it is very important when we are living in this world. We should understand where we are living and how it is binding us. How the soul get entangled in this material world. All these things are mentioned in the later chapters. How the soul get entangled, how the soul get bewildered, how the soul, falls down into the hell, and birth after birth is just rotting in this material world. So how that is happening and how he can come out of that, that will be mentioned in the later chapter. So that is also very important. It is not like that. Knowledge is important. So we cannot just avoid Jnana Yoga completely and Karma completely and just depend on Bhakti Yoga. Other things also we should be having knowledge of Jnana Yoga, of Karma Yoga, and of course Bhakti Yoga. So we'll begin today's chapter, 13th chapter. The name of the chapter is Nature, Enjoyer
and consciousness. So somebody from here, you can operate this, otherwise I have to see there, na? Continuously you can sit here and operate. Arjuna uvacha Prakritim purusham cha eva Kshetram kshetravyameva cha Etadveditam ichchami Jnanam neyam cha Keshava Arjuna uvacha Prakritim purusham cha eva Kshetram kshetravyameva cha Etadveditam ichchami Jnanam gyeyam cha Keshava Shri Bhagavan uvacha Idam shariram kaunteya Kshetram iti abhidhiyate Etadyo vedi tam prahu Kshetrakya iti tadvida Shri Bhagavan uvacha Idam shariram kaunteya Kshetram iti abhidhiyate Etadyo vedi tam prahu Kshetrakya iti tadvida. So the translation, Arjuna said, "O my dear Krishna, I wish to know about Prakriti, nature, Purusha, the enjoyer, and the field, and the knower of the field, and of knowledge, and the object of knowledge." So 6 questions are asked by Krishna or by Arjuna. What are the questions? Prakriti, what is well, he wants to know about Prakriti, Purusha, the field, the knower of the field, and the knowledge and the object of knowledge. Yeah. Prakriti. First question he asked about Prakriti, that is material nature. This world, this whole universe, that is called as Prakriti. I want to know about Prakriti. Kya hai? Then second question he asked about the Purusha, the enjoyer. Who is the enjoyer in this material world? देखो ये वर्ल्ड बनाया है, उसमें बहुत सारे लोग हैं, लेकिन सब लोग एंजॉय कर रहे हैं. Everybody is coming here to enjoy. आप किसी को भी पूछो, आप स्कूल क्यों जा रहे हैं? He will say, I am going so that I can pass 10 and then I can go to college. Okay, college and I will want to get a degree. उसके बाद कुछ कोर्स करेंगे, कोई PhD करेंगे, whatever. तो why? तो you have to get some nice job. फिर उसका मेन हेतु क्या है? तो I can earn lot of money. Okay, फिर क्या होगा? फिर I want to get married so that you know girl can come and I can get married. उसके बाद बच्चे. फिर क्या? फिर उसके बाद क्या? जब मेरे पास सब कुछ होगा, पैसा होगा, वाइफ होगी, बच्चे होंगे, घर होंगे, फिर मुझे आनंद मिलेगा, मुझे खुशी मिलेगी. That is enjoyer. Everybody in this world, they wants to enjoy. इसीलिए इधर है. Otherwise कोई जरूरत नहीं यहाँ पर आने की. कृष्ण के साथ थे, बहुत अच्छे से रह सकते थे, वहां पर सेवा कर सकते थे, लेकिन अंदर डाउट आ गया. बोले कि ये अकेले क्यों ऐसे, मैं भी तो बनना चाहिए, मेरे को भी बनना चाहिए ऐसा एंजॉयर और ऐसा मास्टर और लॉर्ड, ईश्वर मुझे भी बनना है. ये अकेले क्यों है ईश्वर, मुझे भी ईश्वर बनना है अलग से. सो करते हैं अपन घर पे, करते हैं कभी कभी ऐसे
मदर बना रही है तो फिर भी बोलेंगे मम्मा मेरे को भी बनाने का है चपाती, तुम अकेली क्यों बनाओगी? बोला कि नहीं तुम छोड़ो, मैं अच्छे से बनाऊंगी तुमको दूंगी। नहीं मेरे को भी चाहिए चपाती, मैं भी बनाऊंगा या बनाऊंगी। तो फिर मदर क्या करती है, सब झूठा मूठा एक ऐसा बेलन दे देगी, एक छोटा सा यहाँ ये ले और ये थोड़ा सा डब दे देगी, बोला क्या बना जो बनाना है। तो फिर वो बच्चा चालू अपना बनाना में उल्टा करेगा, फिर गर्म करने के लिए झूठ मूठ स्टोव दे देगी, तो स्टोव पे गर्म करेगा, फिर बाद में मदर फादर के पास लाएगा। तो गाड़ी मेरे पास भी गाड़ी होनी चाहिए, तो फादर को बोलते ये ले गाड़ी, तो ऐसा टॉय का गाड़ी दे देंगे, तो बोले इसके साथ खेल, तो फिर वो उसके साथ खेलेगा। तो सिमिलरली इन दिस वर्ल्ड हम लोग डिमांड करते थे कृष्ण हमको ये सब सामग्री दे देते हैं इस वर्ल्ड में, ये लो ये सारे आइटम्स दिए हुए हैं, तुम अभी खेलो इसके साथ। सो नाउ पीपल इन दिस वर्ल्ड दे ट्राई टू एंजॉय विद ऑल दिस थिंग्स कृष्णा विच ही हैज गिवन अस। बहुत सारी चीजें, एल्यूमिनियम है, आयरन है, सिल्वर है या सॉइल है, जो भी है भराओ, घर बनाओ, बिल्डिंग बनाओ, बंगला बनाओ, फिर कुछ इंटेलिजेंस दिया है, थोड़ा सा घर बनाओ या कोई इक्विपमेंट्स बनाओ, कंपनीज या तो मशीन्स बनाओ या जो भी है कृष्णा हैज गिवन। गो, यू वांट टू एंजॉय सेपरेटली, गो एंड एंजॉय। लेकिन कृष्ण जो है ना, ही इज वेरी मर्सीफुल। इसे यार ये लोग को भेज तो दिया है, लेकिन मैं रह नहीं पाऊंगा इनके सिवा। मैं चाहता हूं कि ये लोग वापस आए मेरे पास। तो फिर पर्पसली कृष्णा मेड दिस वर्ल्ड दुखालय शाश्वत, so that person can stay over here, experience the miseries. एंजॉय करना चाहते हो ना अलग से, ठीक है करो, लेकिन उसका रिजल्ट ये रहेगा एट द एंड यू विल बी फ्रस्ट्रेटेड एंड मिजरेबल, यू विल नॉट बी हैप्पी। ऐसा बनाया कृष्ण ने। एंजॉय करना चाहते हो, चलो ठीक है जाओ करो ट्राई, लेकिन कृष्ण ने वो बना दिया ऐसा कि नहीं कर सकते हम एंजॉय, वी कैन नॉट एंजॉय। एट द एंड इट विल बी मिजरेबल एंड एट द एंड इट विल बी फ्रस्ट्रेटिंग। और फिर यही आप में आएगा बिहार बस हो गया, इज ऑल यूजलेस, इस चीज में पढ़ना नहीं है। देयर इज नो रियल हैप्पीनेस इन इट, रियल हैप्पीनेस नहीं। रियल हैप्पीनेस सिर्फ भगवान की भक्ति में है, only in Krishna's bhakti, only in serving Lord Krishna, only in serving devotees, only in the association of devotees. इसी में एक रियल हैप्पीनेस है, because that is our nature. हमारा नेचर ही नहीं है जो हम लोग कर रहे हैं अभी, जो अभी हम लोग कर रहे हैं वो हमारा नेचर नहीं है। हम लोग किसी ना किसी को सर्व करना चाहते हैं, that is the nature of the soul. तो भगवान में इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर हम लोग किसी बॉस की सेवा करने चले जाते हैं। बॉस नहीं मिला, ठीक है बॉस मिला, फिर और किसी स्त्री की सेवा करने चले जाते हैं, गर्लफ्रेंड या तो वाइफ, उसकी भी वो सेवा ही है। वो जाते हैं, वो कुछ भी कर सकता हूं मैं तुम्हारे लिए, तुम सिर्फ आदेश दो, फिर लेके आएंगे उसके लिए जो भी है, तुम्हारे लिए चांद तारे पे तोड़ के ला सकता हूं मैं, पूरा अपने आप को निछार कर देता है उसके लिए। तो सेवा करना है, तो वो नहीं मिला तो फिर देश की सेवा में निकल पड़ते लोग। आई वॉन्ट टू सर्व माई कंट्री, फिर वो सब क्लीनलीनेस ड्राइव और सब कुछ करेंगे वो लोग। कोई एक मुहिम रखेंगे जिसमें फ्री डॉक्टर्स का सेवा होता है, जिसमें लोग आते हैं ट्रीटमेंट लेते हैं, आई का सर्विस देते हैं कि आओ आप चेक करो, वैसा समथिंग दे वांट टू डू, सब दे वांट टू सर्व। कोई नहीं मिला तो एंड में उनको कुत्ता मिल जाता है, कुत्ते को लेके आते हैं और फिर उसकी सेवा शुरू करते हैं। कुत्ते के साथ सोते हैं, कुत्ते के साथ बैठते हैं, कुत्ते के साथ खाते हैं, उसको खिलाते हैं और खुद भी खाते हैं एक ही प्लेट में। सो मच लव देते हैं, कुत्ते को नहलाते हैं, कुत्ते को ब्यूटी पार्लर में लेके जाते हैं। हैव यू सीन? कुत्ते का भी ब्यूटी पार्लर होता है, मैंने देखा है। बाहर फोटोज लगे हुए, कुत्ते को सजाया हुआ, ऐसा ऊपर से एक पोनी टेल बांधा है कुत्ते को, और ऐसे करके बाल नीचे छोड़ दिए हैं और उस कुत्ते को एकदम ब्यूटीफुल बना दिया है। सो लोगों को फिर उसकी सेवा करनी है, डॉग की।
So yeah, unfortunately people are in ignorance, that's why they behave like that. पता ही नहीं किसकी सेवा करनी है, लेकिन करना है, किसी ना किसी की सेवा करनी है. They want to show their affection, they want to give love, they want to love someone, लेकिन करते हैं बाद में फंस जाते हैं, दुखी हो जाते हैं. एक बंदे ने, मैं जानता हूं उसको, he was devotee, but ऐसा डिवोटी है कि उसने कुत्ते को लेके आया अपने घर पे, ऐसा डिवोटी है वो, तो आप समझो. So he's practicing since 1-2 years, लेकिन डॉग के लिए उसका अफेक्शन और वो थोड़ा सा ये था, तो डॉग को लेके आया. तो एक डॉग, तो बेटी बोलने लगी नहीं पापा 2 डॉग चाहिए, क्योंकि एक डॉग रहेगा तो बोर होगा, तो दूसरा रहेगा तो वो लोग खेलेंगे एक दूसरे के साथ. अच्छा तो 2 डॉग लेके आए. एक डॉग की कीमत 85,000, दूसरी की डॉग की कीमत 85,000, तो जोड़ लो, उतने में वो लोग ने डॉग लेके आए. और फिर बाद में 2 महीने के बाद में वो एक डॉग को कुछ तो हो गया, अभी उसको छोड़ तो नहीं सकते, अटैचमेंट ऐसा हो गया है. तो डॉक्टर के पास लेके गए, उसका कुछ किया ट्रीटमेंट, कुछ छोटा सा ऑपरेशन किया, तो उसका 1,20,000 हो गया. तो वो लोग ने कहीं से अरेंज करके वो डॉग का वो ऑपरेशन या ट्रीटमेंट कराया. मतलब जो कमा रहे हैं वो गया इधर. आपको समझ दिख रहा है कितना फुलिशनेस है, कितना इग्नोरेंस में है लोग, और वो भी डिवोटी है. मैं घर पे गया, बैठा, अचानक भौंकने की आवाज आई, भूख भूख. बोला ये डिवोटी के घर पे भूखने का आवाज कहां से है? बोला क्या है ये, बाजू वाले? नहीं हमारे घर पे है. अच्छा, बोला कितना, मतलब डॉग? एक नहीं 2 डॉग है, 2 डॉग. अच्छा 2 डॉग. तो एज ए डिवोटी and as the person is practicing devotee, you feel compassion. बोले ये कहाँ पे फंस गया ये व्यक्ति, अचानक भक्ति कर रहा था और अचानक कौन से मार्ग पर, कौन से डाइवर्शन, मतलब डाइवर्ट हो गया, ये पाथ चेंज कर लिया अपना. सो बेटी के लिए किया, और वो हस्बैंड को भी, उसका जो फादर है उसको भी बहुत अटैचमेंट था. सो मैंने बोला कि जाओ अपने डॉग्स को लेके आओ, मेरे को दिखाओ. तो वो एक ऐसे लेके आई और मेरे को दिखाया. तो क्या नाम रखा है इसका? तो इसका दोनों का नाम मैं भूल गई, समथिंग दे केप्ट सम नाइस नेम. तो मैंने बोला कि ठीक है रख के आओ उसको. भौंकने लगा, वो पास में आने लगा, चाटने लगा, तो फिर लेके जाओ बाहर लेके जाओ. सो आई स्टार्टेड स्पीकिंग टू मदर. लगी ये कैसे हो गया, कैसे लाया? बोले कि क्या करो, ये हस्बैंड जो है ये मान ही नहीं रहे थे. फिर ये भी पीछे लगी थी कि अपन करेंगे, अपन रखेंगे ये वो. बोले यू नो ना इट इज नॉट गुड. बोले हाँ भी क्या करें. तो एज थोड़ा सा अधिकार जैसे मैंने बोला कि मैं इसको लेके जा रहा हूँ, इट इज नॉट गुड. मैं लेके जाके आई विल गिव टू समवन, दोज हु कैन, दोज हु आर लाइक मटेरियलिस्टिक. यू आर चोजन दिस पाथ, हाउ कैन यू सर्व डॉग व्हेन यू आर सर्विंग लॉर्ड? यू कैन कीप इट आउटसाइड. घर में रखेंगे पूरा घर अपवित्र हो जाता है. आप उस घर में कोई भी सेवा एक्सेप्ट नहीं की जाती, कोई भी अर्घ्य या पूजा या ऑफरिंग्स, कुछ भी ऑफर नहीं होता है, कुछ भी एक्सेप्ट नहीं किया जाता जिस घर में डॉग है. कोई भी डेमीगॉड एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहेंगे, पूरा कंटामिनेट हो जाता है घर. डेमीगॉड दे डोंट लुक इन दैट हाउस आल्सो एंड दे आर नॉट इंटरेस्टेड टू कम आल्सो वेयर डॉग्स आर देयर. ऐसे शास्त्र में लिखा है. तो जाले तो वो पागल जैसी बच्ची रोने लगी, एकदम पागल जैसे, पैर पटकने लगी, हाथ पटकने लगी. बोला ले तू डॉग अपना रख. मैं बोला यू आर स्पॉइलिंग योर डॉटर्स लाइफ लाइक दैट. यू नो द स्टोरी ऑफ भरत महाराज. भागवतम इज इतने से समझा रहे हैं अच्छे से, इतना वार्निंग दे रहे हैं कि अगर आप किसी से भी आप अटैच हो जाते हो तो चांसेस है कि आप वो बन जाते हो. भरत महाराज स्टोरी यू नो राइट. सब कुछ छोड़ दिया, उनके अंदर वैराग्य आ गया तो उन्होंने घर भी छोड़ दिया, पूरा लाइफ, अपना पत्नी, अपने बच्चे, सब कुछ छोड़ के जंगल में चले गए. वो there now there he is meditating and there he found this deer. तो कौन ख्याल रखेगा, तो इसीलिए थोड़ा सा ख्याल रखने लगे. लेकिन he got attached, सब कुछ छोड़ दिया. माला करना है, मतलब जप करना जैसे हम लोग करते हैं वैसे उन्होंने वो मेडिटेशन छोड़ दिया,
यज्ञ छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया और बच्चे के वो डियर के पीछे। एट द एंड व्हाट हैपेंड, हु विल टेक केयर ऑफ दिस डियर व्हेन आई विल डाई, एंड ही लेफ्ट हिज बॉडी, ही बिकेम डियर, एंड आई थिंक नेक्स्ट वर्ड ही बिकेम जड़कर। लेकिन फॉर्चुनेटली ही वाज रिमेंबरिंग दैट इन द बॉडी ऑफ अ डियर कि मैं कौन था। सो इग्नोरेंस में है। मैं ये कहना चाहता था कि सबको सेवा करना है, किसी ना किसी की सेवा करना है, किसी ना किसी को अपना अफेक्शन दिखाना है, लेकिन लोगों को पता नहीं है कहां पर करेंगे तो रियल हैप्पीनेस मिलेगा। किसी भी स्त्री से, किसी भी लड़की से दिल लगाओ, एंड में रोना ही पड़ेगा। किसी भी चीज से इस मटेरियल वर्ल्ड में अपना हार्ट लगाओ आप, यू विल बी फ्रस्ट्रेटेड। ओनली विद कृष्णा, यू नो, इफ वी कैन गेट अटैच टू कृष्णा और अपना अफेक्शन, अपना अटैचमेंट वहां पर रखेंगे, देन, और या उनके डिवोटीज पे रखेंगे, देन देयर इज वो श्लोक है भागवतम में, तमोद्वारम योषितम संगी संगम महत सेवम द्वारम आहुर विमुक्ते। It says that when you are attached to this material world, and when you are attached to this materialistic people, the path to hell is wide open. But that same attachment, when it is transferred to Lord Krishna and his devotees, the path for Vaikuntha and Golok is wide open. कितना सिंपल है। अपना अटैचमेंट जो है अपने इस मटेरियल वर्ल्ड और मटेरियलिस्टिक पीपल से हटाकर सिर्फ यहाँ पर लगा देना है, भक्तों के लिए और भगवान के लिए। बस अपना लाइफ जो है सक्सेसफुल। ओनली टू थिंग्स, जस्ट गेट अटैच टू डिवोटीज, जस्ट गेट अटैच टू लॉर्ड कृष्णा। बस हमारा मुक्ति का मार्ग जो है, भगवान के धाम में जाने का मार्ग सुलभ, नो प्रॉब्लम एट ऑल। सो if we understand this, that you know, हमारा हित इसी में है कि जब हम भगवान से प्रेम करेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे, तभी हमारा हित है। ये अगर व्यक्ति समझ गया, that is a success. One should realize this. Yeah. कोई सुन के समझता है, कोई एक्सपीरियंस करके समझता है। सुन के समझने वाले होते हैं फर्स्ट क्लास, और एक्सपीरियंस करके समझने वाले होते हैं सेकेंड क्लास, और एक्सपीरियंस करके वापस वही करना चाहते हैं, उसको बोलते हैं थर्ड क्लास। देयर आर पीपल लाइक दैट, जो चोरी कर लिया, मार खा लिया, वापस जाएंगे, वापस चोरी करेंगे, क्योंकि नेचर है वैसा, फिर वापस मार खाएंगे, फिर वापस। सेकेंड वाला है, वो चोरी कर लिया, मार खाया, लाते खाया, घुसे खाया, बोला नहीं यार बहुत बड़ी है उस दिन, अभी इसके बाद जिंदगी में नहीं करूंगा मैं, तो मैं नहीं करूंगा, तो सेकंड क्लास। लेकिन फर्स्ट क्लास बोला, देखो तू ऐसा तू चोरी बीरी करेगा ना तो बहुत पड़ेगी, हाँ क्योंकि बहुत भयानक मारते लोग। अच्छा सही में बहुत मारते? नहीं, फिर मैं करूंगा ही नहीं, और पागल हो गया मैं, इतना मालूम है मेरे को आगे क्या होने वाला है, मैं क्यों करूँ, छोड़ दो, मैं नहीं करूंगा। सो दैट इज फर्स्ट क्लास। बट अनफॉर्चुनेटली 90% पीपल comes in category second and third, 10% category first में आता है, जो सुन के तुरंत मान लेता है हाँ बस फिनिश, आज के बाद नहीं। लेकिन बहुत लोगों को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं in this world. So if you are in good association, we will be saved. If you are not in the association, we will be cheated, we will be lost. That's why association is very, very important. Being in touch with the devotees is very, very important. नहीं रखेंगे तो फिर बहुत dangerous है। हाँ, तो we'll come back to this. पहले तो पूछा प्रकृति, material nature, दूसरा है पुरुषा, the enjoyer. We talk about just now कि लोग कैसे यहाँ पर आना चाहते हैं और enjoy करना चाहते हैं। तो उसमें फिर हम लोग चले गए कि अपना affection किसी के ऊपर लगाना चाहते हैं। But we should understand that हम लोग को अपना अफेक्शन, अपना अटैचमेंट जो है वो कृष्ण और उनके डिवोटीज के लिए लगाना चाहिए, देन आवर लाइफ इज सक्सेसफुल। तो एंजॉय, कृष्ण अर्जुन जानना चाहते हैं कि इस वर्ल्ड में एंजॉय कौन है, कैसे होते हैं। फिर थर्ड क्या पूछते हैं, क्षेत्रम। क्षेत्रम के बारे में पूछते हैं। क्षेत्रम इज द फील्ड ऑफ एक्टिविटीज, फील्ड ऑफ एक्टिविटीज।
अगर ये क्षेत्र बोले तो फील्ड ऑफ एक्टिविटी, जैसे प्लेग्राउंड है, मतलब कि जाओ जाके खेलो, तो इतना एक बड़ा ग्राउंड दे दिया, आप उसमें गए, बैट बॉल लिया, वो बॉलिंग डाल रहा है, या मतलब एक छोटा सा ग्राउंड दे दिया, उसके आगे आप खेल नहीं सकते। आप बोले यार ये 6 बहुत छोटा है, कोई भी बच्चा भी आगे 6 मार देता है, थोड़ा बड़ा होना चाहिए, लेकिन आप कुछ नहीं कर सकते, दिया है, सो यू प्ले इन दैट। जैसा भी है, इधर खड्डा पड़ा हुआ है, या इधर प्लेन है, इधर ज्यादा ग्रास है, नहीं वो ही दिया है, तुम अभी देखो उसमें जो भी है, दैट इज क्षेत्र, दैट इज कंपेयर्ड टू द बॉडी, दैट इज कंपेयर्ड टू द बॉडी। तो ये बॉडी दिया हुआ है, जाओ जी ले अपनी जिंदगी, जो करना है करो, लेकिन एक लिमिटेशंस दिया है, जितना कर सकते हैं उतना, सबके पास उतना नहीं होगा, किसी किसी को ज्यादा इंटेलिजेंस है तो कुछ ज्यादा कर सकता है, किसी के पास कम इंटेलिजेंस है, किसी के पास है ही नहीं, तो वो फेल होता रहता है, बार बार फेल होता रहता है, दिमाग ही नहीं चलता है उसका। और किसी किसी के पास बहुत है, किसी किसी के पास कुछ अलग भी क्षेत्र होते हैं जिसमें वो लोग इंटेलिजेंस ही नहीं है, वो थोड़ा सा उनको सिर्फ खाना है, पीना है, सोना है, मैथुन करना और सो जाना है, तो वैसा क्षेत्र होता है। वो होता है कीड़ों का, एनिमल्स का, तो वो क्षेत्र वैसा होता है, दे कैन नॉट डू एनीथिंग बियॉन्ड, कुछ सोच ही नहीं सकते, ज्यादा इंटेलिजेंस ही नहीं है उनके पास, बिल्कुल। थोड़ा सा ऊपर वाला क्षेत्र फील्ड ऑफ एक्टिविटीज, ये ह्यूमन बीइंग का होता है, तो उसमें थोड़ा सा आप और कुछ एक्स्ट्रा कर सकते हैं एक्टिविटीज, तो ये क्षेत्र है फील्ड ऑफ एक्टिविटीज। तो हम लोग इसमें से, तो उस ग्राउंड पे जैसे आपको बोला गया गार्डन बनाओ, तो आप कुछ बीज डालोगे, कुछ ना कुछ इसका प्लांट का, इस फ्रूट्स का, और अच्छे से गार्डन बनाओगे। तो उसी प्रकार इसमें भी हम लोग कुछ बीज डालते हैं, इस क्षेत्र में, इस शरीर में हम लोग कुछ बीज डालते हैं। तो बीज पाप के होते हैं और पुण्य के होते हैं, जो हम लोग पाप कर्म करते हैं इसी क्षेत्र में। इस क्षेत्र में वी डू पायस एक्टिविटीज एंड सिंफुल एक्टिविटीज, हम लोग इसी में करते हैं, और फिर उसी में हम लोग फिर हमको भोगना पड़ता है वो सिंफुल एक्टिविटीज के रिएक्शन, पायस एक्टिविटीज के रिएक्शन, वी हैव टू सफर द रिएक्शंस ऑफ बोथ। तो ये क्षेत्र है, ठीक है, दैट इज थर्ड वन, क्षेत्र। चौथा क्या पूछा है? क्षेत्रज्ञम। क्षेत्रज्ञम क्या होता है? द नोवर ऑफ द फील्ड। मतलब कौन? एक तो मैंने क्षेत्र बोला, ये, फिर उसका नोवर कौन है? सोल। तो हम लोग को पता होना चाहिए कि ये क्षेत्र दिया हुआ है और इसमें क्या एक्टिविटीज मुझे करना है, और ये इसमें मैं कुछ भी गलत करूंगा तो मैं फंसा रहूंगा यहाँ पर। मुझे इस क्षेत्र पे प्रॉपर यूटिलाइज करना होगा, हैव टू यूटिलाइज इट प्रॉपरली, अदरवाइज मैं भटकता रहूंगा इसी संसार में, कभी नरके, कभी स्वर्गे, कभी अपर प्लैनेट्स, कभी लोअर प्लैनेट्स। कितने प्लैनेटरी सिस्टम है? 14 प्लैनेटरी सिस्टम। पता है किसको ऊपर कौन सा है? बोल सकता है कोई? हेवनली अबोर्ड है, स्वर्ग, अतल, नहीं, स्वर्ग, जनलोक, महरलोक, तपलोक, ब्रह्मलोक, लाइक दैट, यू नो, एंड बिलो अतल, तलातल, रसातल, महातल। तो ये सब नीचे के लोग, और बीच में हम लोग आते हैं भूलोक। तो वी आर लिविंग इन द भूलोक। लेकिन हमारे एक्टिविटीज ऐसे रहेंगे कुछ कर्म के हिसाब से, तो कभी ऊपर भेज देंगे ऊपर के लोक में, कभी नीचे के लोक में भेज देंगे, बट दैट इज ऑल्सो नॉट द हाईएस्ट डेस्टिनेशन। स्वर्ग में जाना चाहते हैं, स्वर्ग में जाके करेंगे क्या? पहले जब हम लोग नहीं भक्ति में थे तो स्वर्ग हमारे लिए कितना क्या है स्वर्ग में? स्वर्ग में सुंदर सुंदर स्त्रियां हैं, अप्सराएं हैं, जो यहाँ पर हम लोगों को कोई देखता भी नहीं, लेकिन वहां पर हमको मिलेंगी। And you can be with them, you can spend time with them, you can enjoy with them. हाँ, तो मेरे को तो जाना है वहां पर, तो और क्या? तो वो लेके आएगी ग्लास, उसमें होगा कुछ
शराब या तो कुछ इंटॉक्सिकेशन, और वो अपने हाथों से पिलाई। अरे मैं तो जाना ही है उधर, तो इतना सुख इधर तो कभी कोई किया नहीं, उधर मिलेगा मेरे को स्वर्ग। तो स्वर्ग हमारे लिए मतलब क्या था? अनफॉर्चुनेटली अभी कुछ कुछ स्क्रिप्चर्स इनकम्प्लीट स्क्रिप्चर्स है, मतलब पूर्ण नहीं है। कुछ कुछ रिलीजन के उनके हिसाब से उनको वहां तक दिया हुआ है। आगे भी और हो सकता था, लेकिन उनका लेवल उतना नहीं था, समझ ही नहीं सकते थे, इसलिए उधर तक रोक दिया। जैसे अभी कैथलिक लोग हैं, उन लोग को भी वो हेवन उनके लिए टॉप मोस्ट है। इवन मुस्लिम्स, उनके लिए भी हेवन जो है वो टॉप मोस्ट है। 72 हूरे और जो तुम्हारी पत्नी, उसका क्या, वो पत्नी जो है वो हमारी रानी होगी वहां पर मेन, और बाकी जो है you will be having them and you can be with them and you can enjoy with them. So इसी के लिए they are doing नमाज or whatever. उनके दिमाग में वो है कि आगे जाके हमको भगवान जो है, अल्लाह जो है, 72 पूरे मिलेंगे। लेकिन यार वो तो स्वर्ग में मिल ही जाता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, वो देयर ऑल्सो यू हैव दैट एंजॉइंग टेंडेंसी ना, कि मैं जा रहा हूँ वहां पे, मुझे एंजॉय करने मिलने वाला है। हाँ, ट्राई टू बिकम द पुरुषा, एंजॉय तो एक ही है, दैट इज लॉर्ड, बट वी आर ट्राइंग टू बिकम एंजॉय, तो दे वांट टू गो देयर एंड एंजॉय। लेकिन वो क्या है, अल्टीमेटली आपके पायस कर्म खत्म हो जाएंगे, वो उधर नहीं लिखा है, शायद वो इधर लिखा है, शिने पुण्य मत्य लोकम विशन, that once your pious activities are over, तो आपको नीचे आना पड़ेगा। फिर बात हो रही है, ऐसे टाटा करेंगे बाद में आओ, खत्म हो गया तुम्हारा। cannot say that permanently because उतना है ही pious कर्मा, जितना कमाया है उतना ही रहना पड़ेगा। So स्वर्ग में जाना ये बहुत बुद्धिमानी नहीं है। So कोई भी लोक में जाना शास्त्र में दिया है, तो बोला ये बहुत अच्छा है, इधर थोड़ा जाके मैं रहना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ। नॉट प्रॉपर, नॉट इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस इज दैट वन वांट्स टू गो आउट ऑफ दिस मटेरियल। सो ये था क्षेत्रज्ञ, द नोअर ऑफ द फील्ड, दैट इज द सोल। आगे हम लोग देखेंगे, इसमें 2 नोअर है, एक है सोल और सुपर सोल, बोथ आर देयर। लेकिन मायावादी क्या सोचते हैं, एक ही है, 2 नहीं बोल रहे, वो एक ही है, वो दैट इज द सुपर सोल एंड सोल, एक ही है वो। हम भी ब्रह्म है, तुम भी ब्रह्म हो, हम भी नारायण है, तुम भी नारायण, नमो नारायण। यही आप लोग ये करेंगे, they worship each other as नारायण, दरिद्र नारायण, they say like that, दरिद्र नारायण। So क्षेत्रज्ञ, the knower of the field। फिर बाद में 5वां आता है ज्ञानम एंड नेयम। ज्ञानम मतलब अर्जुन पूछना चाहते हैं क्या है ज्ञान, मुझे आप वो बताओ। ज्ञान मतलब अकॉर्डिंग टू मटेरियल पीपल 1 to 10 स्टैंडर्ड एसएससी, उसके बाद 12th कॉलेज में गए, ग्रेजुएशन हो गए, फिर उसके बाद में कोई डिप्लोमा किया, उसके बाद जो भी किया, उसके बाद डॉक्टर बन गए, उसके बाद पीएचडी किया या इंजीनियरिंग किया, जो भी किया, हाँ आई एम नॉलेजेबल पर्सन, आई एम साइंटिस्ट, आई एम नॉलेजेबल पर्सन। ये नॉलेज है? This knowledge will not take you out from the material world। ये नॉलेज मटेरियलिस्टिक नॉलेज है, इंपॉर्टेंट है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आजकल से छोड़ दो कॉलेज, मदर माँ सुन के आया हूं मैं, ये असली ज्ञान नहीं है। असली ज्ञान जो है वो भक्ति है, असली ज्ञान जो भगवत गीता में, इसलिए आज से कॉलेज बंद। ऐसा मत कर, वो इंपॉर्टेंट है, करना पड़ेगा, बिकॉज वी आर देयर इन दिस मटेरियल। अगर आप कर लिए 12वीं या 15वीं कर लिए, आश्रम ज्वाइन करने का आपका पूरा प्लान है, वो फिर छोड़ देना उसको, देयर इज नो नीड, यू कैन लीव। लेकिन सम एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट, वी कैन नॉट टेक एनीबॉडी। 10th स्टैंडर्ड में किसी को वैराग्य आ गया, 9th स्टैंडर्ड में टाइप बनना चाहता हूँ, ये सब क्या है ज्ञान? नहीं, यू हैव टू डू, you have to go through this cycle of that 1st to 10th standard. You have to take the degree, you have to again search for job, then you have to work there for 2-3 years. You have to see how they harass, you have to see how they exploit you, you have to see
how how much pressure is there, and you have to realize how much difficult it is to sustain and survive in this material world. You have to experience that, and then with realization you join. 50 साल में नहीं, 25 साल के इसमें मैं बोल रहा हूँ, तब तक के लिए पूरा एक्सपीरियंस ले लो, 25, 26, 27 जो भी है, 25 तो ऐसे बताया गया. बट some are like very much determined. उनके लिए वो ऑलरेडी पास्ट लाइफ का उनके पास पावर होता है, तो इमीडिएटली चलते हैं. बट ये एक्सपीरियंस सबको देते हैं, उसके लिए बेस है, बेस में जाते हैं, बेस में रहते हैं, बाहर जॉब करते हैं, उनका शेड्यूल अच्छा होता है, सुबह से लेके दोपहर तक, रात को प्रसाद खाते हैं भक्तों के साथ, भगवत गीता, प्रभुपाद लेक्चर, ये सब कुछ होता है. फिर धीरे धीरे करते करते उनके अंदर थोड़ा डिटैचमेंट आ जाता है, लेकिन नहीं ये अच्छा लाइफ, इसमें थोड़ा और करके देखते हैं, फिर आगे जाके थोड़ा फुल टाइम में रह के देखते हैं. सो लाइक दैट. सो एक्सपीरियंस बाहर का लेना इम्पोर्टेंट है. नॉलेज, तो ये जो मटेरियल नॉलेज जो है ना, वो दैट इज नॉट द रियल नॉलेज, ये मटेरियलिस्टिक नॉलेज है. इट इज नॉट गोइंग टू टेक अस आउट फ्रॉम दिस मटेरियल वर्ल्ड. लेकिन जो फिलोसोफर, साइंटिस्ट जैसे, दे हैव सो मच प्राइड, कि मैं इतना बड़ा एजुकेटेड, इतना बड़ा नॉलेजेबल पर्सन हूँ, बट वो कुछ भी यूज का नहीं है. दैट पर्सन डजंट नो हु ही इज, उनको यही नहीं पता. तो उसको पूछा तो कुछ शून्य ज्ञान है उनको इस शास्त्र का, कुछ भी ज्ञान नहीं है कि वो कौन है, आत्मा क्या होता है, परमात्मा क्या होता है, स्वर्ग क्या होता है, नर्क क्या होता है. गोइंग आउट फ्रॉम दिस मटेरियल वर्ल्ड, दे डोंट नो एनीथिंग. मरने के बाद क्या होगा, they also don't know this also. That they don't believe in God only, first of all. इतना नॉलेज हो गया, इतना IQ इतना हाई हो गया कि एकदम रिजिड हो गया, और उन्होंने भगवान को अस्तित्व ही छोड़ दिया कि भगवान करके कुछ है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग ही है, साइंस है, बस ये सब कुछ हम लोग कर सकते हैं. यू आर गॉड, वी आर गॉड, एवरीबडी इज गॉड. तो ऐसा उनका कंसेप्ट हो जाता है. सो दैट नॉलेज will only increase the ignorance, will only increase the pride, arrogance. ये नॉलेज जो है, ये मटेरियलिस्टिक नॉलेज है. स्कूल में भी जो सिखाते हैं टीचर्स लोग, क्या सिखाते हैं, बच्चे अच्छे से पढ़ो, अच्छे से पढ़ोगे तो तुमको अच्छा जॉब मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा. पहले से ही नौकर बनाने का पूरा प्लान चालू रहता है. टीचर लोग भी नौकर बनाने का सिखाते हैं हम लोग. तो ज्ञानम, तो इस चैप्टर में we will understand the real knowledge. Krishna will tell us 20 items of knowledge. Krishna will tell us in this chapter, जिससे person can come out of this material world. कृष्णा बोलते हैं यही नॉलेज है मेरे हिसाब से, बाकी जो भी है that is useless, वो मेरे लिए कुछ मायने ही नहीं रखता. कृष्णा बोलते हैं ये जो 20 में अभी बता रहा हूँ अर्जुन, that is the real knowledge. और बाकी का जो मैं बता रहा हूँ, मतलब बाकी का जो भी तुम समझते हो नॉलेज, that is useless according to me. तो वो हम देखेंगे कि क्या कृष्ण बताते हैं नॉलेज. तो अर्जुन ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, ज्ञान क्या होता है वो बताइए. फिर लास्ट में क्या बता रहे हैं, 6th one, ज्ञेयम, द ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज. तो मतलब क्या होना चाहिए ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज, आप बताओ. ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज क्या होना चाहिए, किसके बारे में नॉलेज होना चाहिए. संसार के बारे में नॉलेज होना चाहिए, या कुछ किसी जो भी अलग अलग चीजों का नॉलेज लोग लेना चाहते हैं, लेकिन किस चीज का नॉलेज होना चाहिए. यस, ओके, एब्सोल्यूट ट्रूथ. हाँ, वेरी गुड. Soul, super soul, real Yes. the real problem. ओके. सोल, सुपर सोल, इनके बारे में. द ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज इज द ओनली वन. यस, God knowledge. yes, about God, about the absolute truth, about the supreme personality of God. That is Krishna. Arjuna is asking here, the object of knowledge क्या होना चाहिए. ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज मेन किसके बारे में हम लोग को नॉलेज होना चाहिए. वेदेश्च सर्वे अहम एव वेदो वेदांत वेद विदेव चाम. कृष्ण से I am the compiler of the Veda, I am the knower of the Veda, I am to be known by the Vedas. ये वेदास से मैंने ही बनाया है, मैंने इसकी रचना की है, और वेदास से एक ही फाइनल कंक्लूजन है, मुझे जानना. ये कृष्ण बोलते हैं, डायरेक्ट बोल रहे हैं.
So that's what, these are the 6 questions of the first second verse. तो हम लोग अभी परपट देखते हैं जिस so that you can और थोड़ा सा अच्छे से समझ में आ जाएगा जो भी मैंने अभी बताया है. ओके ओके Purport by His Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki Jai. Arjuna was inquisitive about Prakriti, nature, Purusha, the enjoyer, Kshetra, the field, Kshetragya, its knower, and knowledge and the object of knowledge. When he inquired about all these, Krishna said that this body is called the field, and that one who knows this body is called the knower of the field. This body is the field of activity for the conditioned soul. The conditioned soul is entrapped in material existence, and he attempts to lord it over material nature. And so, according to his capacity to dominate material nature, he gets a field of activity. That field of activity is the body. And what is the body? The body is made of senses. The conditioned soul wants to enjoy sense gratification, and according to his capacity to enjoy sense gratification, he is offered a body or a field of activity. Therefore, the body is called Kshetra, or the field of activity for the conditioned soul. Now the person who should not identify himself with the body is called Kshetragya, the knower of the field. It is not very difficult to understand the difference between the field and its knower, the body and the knower of the body. Any person can consider that from childhood to old age, he undergoes so many changes of body, and yet is still one person remaining. Thus, there is difference between the knower of the field of activities and the actual field of activities. A living, conditioned soul can thus understand that he is different from the body. It is described in the beginning, they who knows me, that the living entity is within the body, and that the body is changing from childhood to boyhood, and from boyhood to youth, and from youth to old age, and the person who owns this body knows that the body is changing. The owner is distinctly Kshetragya. Sometimes we think, I am happy, I am a man, I am a woman, I am a dog, I am a cat. These are the bodily designation of the knower. But the knower is different from the body. Although we may use many articles, our clothes, etc., we know that we are different from the things used. Similarly, we also understand by little contemplation that we are different from the body. I or you or anyone else who owns the body is called Kshetragya, the knower of the field of activities, and the body is called Kshetra, the field of activities itself. In the first 6 chapters of Bhagavad Gita, the knower of the body, the living entity, and the position by which he can understand the Supreme Lord are described. In the middle 6 chapters of the Bhagavad Gita, the Supreme Personality of Godhead and the relationship between the individual soul and the super soul in regard to devotional service are described. The superior position of the Supreme Personality of Godhead and the subordinate position of the individual soul are definitely defined in these chapters. The living entities are subordinate under all circumstances, but in their forgetfulness they are suffering. When enlightened by pious activities, they approach the Supreme Lord in different capacities, as the distressed, those in want of money, the inquisitive, and those in search of knowledge. That is also described. Now, starting with the 13th chapter, how the living entity comes into contact with material nature and how he is delivered by the Supreme Lord through the different methods of fruitive activities, cultivation of knowledge, and the discharge of devotional service are explained. Although the living entities is completely different from the material body, it somehow becomes related. This is also explained. So almost everything, whatever we discussed, it is covered over here. So 6 things we discussed. Anybody has any doubt or any question in this point, they can ask. Yes, Guru. I had a doubt from what you said earlier about Bharat Maharaj when we were talking about him.
My question was that we have read in the Gita and other places as well that if someone does devotional service in this life and is unsuccessful to go back to Godhead, he'll still get a human birth and he'll start from the spiritual, the things that he has already gained. That's where he'll start again. So with Bharat Maharaj, why did he gain a body of a deer if he obviously had much more spiritual quotient than any of us, right? So why is it so that even after Krishna saying it in the Gita that an unsuccessful yogi gets a good birth, why didn't Bharat Maharaj get the same? Yeah, so nice question. He said that whenever somebody dies, if he is not able to complete his devotional service, he starts from the next birth from there itself. So, but this Bharat Maharaj was much more elevated than all the people, all of us. Then how come he became deer? He should be considered. Krishna should have considered कि इतना ऊपर स्टेज है नहीं गिराना चाहिए. But वो कैसे गिर गए? ऐसा ही क्वेश्चन है आपका? Yeah. So see, जो हम लोग जो जीते हैं, that is we are suffering our karma. But when Krishna uses his devotee to teach others, अभी भरत महाराज हो या अमरीश महाराज हो, प्रहलाद महाराज हो, ध्रुव महाराज हो, there are so many devotees in Srimad Bhagavatam. There Krishna is using all of them. अर्जुना हो, युधिष्ठिर महाराज हो, कितना तकलीफ उनके पास में, कितना डिवोटी होने के बावजूद so many troubles they went through. कुंती महारानी, so much trouble with their द्रौपदी, कृष्ण की सखी है, so it's a very nice devotee of Lord Krishna, लेकिन उसको वो go through करना पड़ा उनका जब उनकी साड़ी ये कर रहे थे. तो बोल सकते हैं डिवोटी है, ये क्यों ऐसे कृष्ण करते हैं इनके साथ, ऐसा नहीं करना चाहिए. तो कृष्णा यूज हिज डिवोटीज टू टीच अदर्स, ये मेन है. और एक सेट एग्जाम्पल सेट करने के लिए कि कैसा बिहेव करना चाहिए और कैसा नहीं करना चाहिए. एक है कैसा बिहेव करना चाहिए, जैसे प्रहलाद महाराज है, अर्जुन है, युधिष्ठिर है, वो लोग ने हमेशा कृष्ण के चरण पकड़ के रखे, कितने भी प्रॉब्लम हो कृष्ण को छोड़ा ही नहीं. और एक में ऐसा एग्जाम्पल दिया जय विजय का है, फिर बाद में अभी इनका बारे में आपने बताया जड़ भरत, उसमें ये सिखाते हैं, वो भक्तों को अपने ऐसे यूज करते हैं कि ये मत करो नहीं तो ये हो जाएगा तुम्हारे साथ, ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा. तो जय विजय ने थोड़ा सा उन्होंने ये किया और उनको अलाउ नहीं किया. दैट वाज अ प्लान एंड अरेंजमेंट ऑफ द लॉर्ड कि उनको श्राप मिला, 3 जन्मों रावण बने और हिरण्यकशिपु बने, वो सब बने. लेकिन इनके केस में ऐसा है कि इफ यू डू लाइक दिस then you may become dog, or you may become deer, you may become cat, or you may become woman if you are attached to woman. तो वो सब ये करने के लिए, वार्निंग देने के लिए भागवतम में ये सब स्टोरीज हैं. तो बता रहे भगवान, भागवतम बता रहा है कि इतने ऊपर के स्टेज पे जाके भी गिर सकता है कोई व्यक्ति अगर उसने थोड़ा सा भी डाइवर्ट हो गया. डोंट टेक इट वेरी लाइटली कि मैं भी बहुत एक्सपीरियंस हो गया, मेरे को तो माया पकड़ ही नहीं सकती, ऐसा कभी मत सोचना. कृष्ण यहाँ पे चैलेंज मतलब वार्निंग दे रहे हैं कि माया इज वेरी स्ट्रॉन्ग टिल यू गो बैक टू गॉड. लास्ट मोमेंट पे भी पर्सन कैन गेट एल्यूर्ड बाय माया. तो इसीलिए माया से डर होना चाहिए और थोड़ा भी केयरलेसनेस नहीं होना चाहिए भक्ति में. तो ये सिखाता है हमको पास्ट टाइम में. आई एम एबल टू आंसर योर क्वेश्चन. एनीबडी एल्स, anybody wants to say anything in this shloka related to this shloka or this part? Okay, so we can go to the third shloka. The third shloka. क्षेत्रज्ञं चाभिमां विधि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञयो ज्ञानम् यत्तत् ज्ञानं मतं मम. So Prabhupada is saying in the translation, O sin of Bharata, you should understand that I am also the knower in all bodies
And to understand this body and its knower is called knowledge. That is my opinion. So कृष्णा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर नहीं करते डायरेक्ट. पहला क्वेश्चन तो उन्होंने प्रकृति के बारे में पूछा, प्रकृति के बारे में, पुरुषों के बारे में, तो वो डायरेक्ट नहीं आंसर दिया. उन्होंने डायरेक्ट आंसर दिया आई एम ऑल्सो द नोअर इन ऑल बॉडीज, नोअर ऑफ द फील्ड, फोर्थ नोअर ऑफ द फील्ड, and to understand this body is the knower of and its knower is called knowledge. The fourth and fifth answer Krishna is giving in this shloka, fourth and fifth. तो कृष्णा का सीक्वेंस है, अपने हिसाब से कृष्णा will explain. So he's saying you should understand that I am the knower in all bodies, and to understand this body and its knower is called knowledge. This is my opinion. So in all the bodies, as we discussed previously, there are two personalities. One is soul and one is super soul. Soul and super soul is there, and we just know about this body. हम लोग मर्यादित है सिर्फ इसी शरीर के बारे में जान सकते हैं. मैं तुम्हारे शरीर में क्या चल रहा है वो मैं नहीं जान सकता. तुम्हारे अंदर फेफड़े कैसे काम कर रहे हैं, या तुम्हारा अंदर दिल कितना धड़क रहा है, कितना तेज धड़क रहा है, मैं नहीं जानता. या कौन सी बीमारी के थ्रू तुम एक्सपीरियंस कर रहे हो, मैं नहीं जानता. मैं सिर्फ जानता हूँ मुझे क्या तकलीफ हो रही है, मुझे कहाँ पेन हो रहा है, या मैं अपने बॉडी में मतलब क्या क्या कर सकता हूँ, मेरे लिमिटेशन मैं जानता हूँ. योर लिमिटेशन, योर बॉडी का मैं नहीं जानता. तुम्हारा मैं क्या क्या मैंने किया है इस जन्म में, पिछले इसी मतलब 20 years, 25 years previously what I have done, और अभी मैं क्या कर रहा हूँ, कितने पाप किया, कितना पुण्य किया, सिर्फ मैं ही जानता हूँ. लेकिन तुम्हारे पाप जो तुम किए हो या पुण्य किए हो वो मैं नहीं जानता. That is my limitation. मैं सिर्फ अपने शरीर के बारे में जानता हूँ, मेरे कर्म के बारे में जानता हूँ. लेकिन कृष्णा says that I am the knower of all the bodies. ये फर्क है तुम में और मुझ में. लेकिन ये मायावादी अननेसेसरी बोलते कि वो एक ही है. मतलब यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट दैट पर्सन. तुम जानते हो क्या, नहीं जानते, लेकिन फिर भी दे से दैट आई एम गॉड, वी आर गॉड. कृष्णा सेज आई एम द नोअर ऑफ ईच एंड एवरी बॉडी, ईच एंड एवरी लिविंग एंटिटी. सबके बारे में कृष्णा नोज अवर पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर. वी कैनॉट नो, वी कैनॉट अंडरस्टैंड दिस. कृष्ण को हमारे मिलियंस ऑफ बर्थ पता है पहले के, अनलिमिटेड बर्थ जो हम लोग लेते आए हैं, unlimited from time immemorial. We are going on taking birth again and again. कृष्ण को जस्ट ऐसे देखा, वो तो देख के तुरंत उनको पूरा पिक्चर दिख जाता है पहले का, और उनको आगे का भी दिख जाता है, ये आगे क्या करने वाला है वो भी समझ में आता है कृष्ण को. कैसे आगे का कैसे समझ में आएगा क्या करने वाला है? हाँ, त्रिकालदर्शी है, लेकिन कैसे हो सकता है कि आगे क्या करने वाला है? Because the karma is pre-decided. Whatever you did in your previous life decides what you're going to do in your future. Yeah. And Krishna obviously knows what your karma is, because he is the super soul. He's been watching it for a very long time. So he knows what activities you're going to do further. Yeah. जैसे एक फादर है, मदर है, 4 बच्चे हैं उनको, तो वो देखते रहते हैं कि बच्चा अभी क्या करने वाला है, कैसा करने वाला है. तो उनको नेक्स्ट मूव भी पता है कि अभी ये क्या करने वाला है, तो उसको पहले पकड़ लेते हैं, साइड में मारने वाला है उसको या फिर नहीं करने वाला है, उसको पहले साइड में कर देते हैं. वो पूरा वो क्या है, वो पैटर्न होता है. द पैटर्न कैसा जिया है, कितना बार वो प्रॉमिस किया मैं भक्ति करूंगा, कितने बार वापस गिर गया, वो छोड़ दिया उसने, फिर वापस प्रॉमिस किया भक्ति करूंगा मैं, फिर वापस गिर गया. सो कृष्णा नोज द पैटर्न, और इसके हिसाब इसीलिए वो जानते हैं आगे क्या होगा. सो इसका क्या सॉल्यूशन है? सॉल्यूशन क्या है? बार बार गिरते रहना, बार बार पकड़ना, वापस गिरना, फिर पकड़ना. What is the solution? Solution is that you have to go and tightly hold the lotus feet of Lord Krishna and his devotees. Otherwise, ऐसे ही चलता रहेगा. We'll go on taking birth. We'll go on taking birth. Krishna knows our future.
बार बार गिरता है ये बंदा, बार बार ये होता है, बट स्टिल यू नो वी टेक शेल्टर ऑफ लॉर्ड कृष्णा, इफ यू प्रे वेरी सिंसियरली, देन कृष्णा कैन डू सम मिरेकल, सम मैजिक, he can bless us, he can give us his mercy, Mahaprabhu can give us his mercy. So I was saying, he is the knower of all the bodies. सबका कृष्ण का प्रीवियस का कर्मा सब पता है, और हम लोग जब देखते हैं ना तो हम लोग सिर्फ एक बॉडी को देखते हैं और उस जन्म को देखते हैं, और फिर हम बोलते हैं ये बंदा कितना अच्छा है, इसने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर इसके साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है जीवन में। या तो फिर अपने आप को फिर बोलते हैं कि मैं तो जीवन भर अच्छा बिहेव किया हूँ, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं सोचा, पता नहीं भगवान मेरे साथ ऐसे क्यों इतना मेरा बुरा होता है मेरे जीवन में। या किसी और के बारे में ऐसा सोचते हैं कि इसका पति मर गया, इसके बच्चे भी इसको छोड़ के चले गए, बचपन से जब से ये पैदा हुई है इसने सिर्फ दुख ही देखा है, इसने कभी सुख का चेहरा ही नहीं देखा है, सिर्फ दुख ही भोगते जा रही है। क्या ये लड़की, मतलब इसने कभी किसी का बुरा नहीं किया, इसने किसी के कभी का बुरा नहीं चाहा, लेकिन इसको कितना दुख मिल रहा है। ये भगवान कितने क्रूर है। सुने ऐसे लोग, देखे? सो बिकॉज यू नो दे डोंट हैव नॉलेज। जब हम देखते हैं वही शरीर देखते हैं, वही जन्म देखते हैं कि इसने इसमें कुछ नहीं किया, लेकिन वो देखते नहीं है कि भाई इसके पहले भी बहुत सारे जन्म हुए हैं, बहुत कलाकांडी करके आया है, तब ये अभी वो उसका फल जो है वो भोग रहा है। वी कैन नॉट जस्ट यू नो अंडरस्टैंड दिस कि कौन से जन्म का कौन सा ये क्या भोग रहा है। धृतराष्ट्र का कृष्णा से इन भगवत गीता कि ये जो है कर्म का जो रिएक्शन है उसको समझना बहुत डिफिकल्ट है, इसलिए समझने का प्रयास मत करो। अर्जुन को बोलते हैं इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। फिर धृतराष्ट्र का एग्जाम्पल आता है उसमें। धृतराष्ट्र was blind, तो उसने क्या किया था बहुत पहले, वो आता है एक अलग रेफरेंस स्क्रिप्चर्स जो होते हैं उसमें आता है एक, जिसमें धृतराष्ट्र जो पहले के जन्म में कुछ था और उसने कीड़े को उसने पोक कर दिया और उसकी आंखें ये कर दी थी, तो ही सफर्ड द रिएक्शन ऑफ बिकमिंग ब्लाइंड इन द बर्थ ऑफ इन दैट बॉडी। लेकिन और उनको 100 पुत्र होने वाले थे, और ना उन्होंने क्या किया था, वो पूरा जला दिया था कि उसमें कुछ बच्चे थे उसके, समथिंग, तो उसको भी जला दिया, तो वो सब मर गए थे। तो इसीलिए 100 पुत्र उनके मर गए, क्योंकि उन्होंने वैसा ये किया था, कर्मा किया था, इसलिए उनके 100 पुत्र भी मर गए और अंधे भी थे। तो उसमें अभी आता है 100 पुत्र अभी उनको प्राप्त करने हैं, तो 100 पुत्र तो ऐसे किसी को मिलते नहीं है, उसके लिए अच्छा कर्म चाहिए, तो इसलिए उन्होंने 2-3 बर्थ लिए और अच्छा कर्म करना पड़ा उनको, क्योंकि उनको ये भोगना है, इसलिए उन्होंने अच्छा कर्म करना पड़ा। नेचर ने उनसे करा के लिया, कुछ दान करा के लिया, कुछ यज्ञ करा के लिया, कुछ तो करा के लिया, समथिंग ही डिड, एंड दैट्स व्हाई ही गॉट सम पायस कर्मा, एंड दैट्स व्हाई ही गॉट 100 सन। और फिर अपने कर्मा का फल भोगते हुए उसके 100 बच्चे उसके जीते जी मर गए, and then he is suffering the hellish condition over there. तो it is very difficult to understand कि कौन सा कर्मा का रिएक्शन क्या है, किधर है, कुछ नहीं। तो इसलिए हम लोग जब देखते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, कृष्णा when he sees from up, he sees everything। जब हम देखते हैं हम लोग को एकदम पैरेलल दिखता है, लेकिन कृष्णा ऊपर से सब उनको पूरा दिखता है। So कृष्णा says I am the knower in all the bodies, knower of everyone। हर एक के बारे थॉट्स के बारे में कृष्ण जानते हैं कि ये बंदा क्या सोच रहा है। कृष्ण इतने तो ये नहीं, मतलब हम जाएंगे उनको बोलेंगे कि हे कृष्ण, और मतलब आप मेरा ये इच्छा पूरी कर दो, मतलब ही नोज, कृष्ण अंडरस्टैंड दैट ये चीटर है, कि ये जैसा ही इसका मैं पूरा कर दूंगा ये भाग जाएगा, आएगा भी नहीं मेरे पास, देखेगा भी नहीं मेरे पास। लेकिन कृष्ण अंडरस्टैंड दिस, सो कृष्ण अंडरस्टैंड द थॉट्स ऑल्सो, बट हम लोग जो है तुम्हारे थॉट्स, मैं जो है तुम्हारा थॉट्स नहीं जान सकता, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, तुम्हारे माइंड में क्या चल रहा है नहीं जानता। लेकिन कृष्ण कहते हैं आई एम नोवर इन ऑल द बॉडीज, आई नो देयर थॉट्स, आई नो देयर कर्मा, आई नो देयर फ्यूचर, देयर पास्ट, प्रेजेंट, सब कुछ पता है उनको। तो ये फर्क है सोल एंड सुपर सोल में। तो हम लोग इसका परपट पढ़ते हैं, सो दैट वी कैन
अंडरस्टैंड? आप लोग ध्यान दीजिए, परफेक्ट ज़्यादा बड़ा नहीं है लेकिन थोड़ा सा अटेंटिव रहिए. While discussing the subject of the body and the knower of the body, the soul and the super soul, we shall find three different topics of the study: the Lord, the living entity, and matter. In every field of activities, in every body, there are two souls: the individual soul and the super soul. Because the super soul is the plenary expansion of the Supreme Personality of Godhead, Krishna says, I am also the knower, but I am not the individual knower of the body. I am the super knower. I am present in every body as the Paramatma or super soul. One who studies the subject matter of the field of activity and the knower of the field of very minutely in terms of Bhagavad Gita can attain to knowledge. The Lord says, I am the knower of the field of activities in every individual body. The individual may be the knower of his own body, but he is not in knowledge of other bodies. The Supreme Personality of Godhead, who is present as the super soul in all bodies, knows everything about all bodies. He knows all the different bodies of all the various species of life. A citizen may know everything about his patch of land, but the king knows not only his palace but all the properties possessed by the individual citizens. Similarly, one may be the proprietor of the body individually, but the Supreme Lord is the proprietor of all bodies. The king is the original proprietor of the kingdom, and the citizen is the secondary proprietor. Similarly, the Supreme Lord is the supreme proprietor of all bodies. The body consists of the senses. The Supreme Lord is Rishikesh, which means the controller of the senses. He is the original controller of the senses, just as the king, the original controller of all the activities of the state. The citizen are secondary controllers. The Lord says, I am also the knower. This means that he is a super knower. The individual soul knows only his particular body. In the Vedic literature, it is stated, you can come down. Come to that Bhokta, Shveteshwar Upanishad. There now? Yeah. In the Shveteshwar Upanishad 1.12, Bhokta Bhogyam Preritaram Cha Matva Sarvam Proktam Trividam Brahmamitar. These are the three Brahman conceptions. Prakriti is Brahman as a field of activities, and the Jiva, individual soul, is also Brahman and is trying to control material nature, and the controller of both of them is also Brahman. But he is the factual controller. In this chapter, it will also be explained that out of the two knowers, one is fallible and the other is infallible. One is superior and the other is subordinate. One who understands the two knower of the field to be one and the same contradicts the Supreme Personality of Godhead, who states here very clearly, I am also the knower of the field of activity. I am also, देखो यहाँ पर ना कृष्ण कह रहे हैं, I am also the knower of the field of activities. And I am also situated there. I am also situated in the field. So यहाँ पे also च जो शब्द आया है संस्कृत में च, इसका मीनिंग है कि I am also there. देखो इसका एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ, आपको एग्जाम्पल बताता हूँ. जैसे अभी कृष्ण यहाँ पे बता रहे हैं I am also there. ये मायावादी का कंसेप्ट को हम लोग ये कर सकते हैं कि मायावादी बनते से कि there is only one, that is soul और super soul, वो एक ही है. लेकिन कृष्ण यहाँ पे कह रहे हैं I am also there. Soul is there, I am also there. जैसे अगर आप किसी रूम में ठहरे हो, आप ऐसे बोल सकते हो कि मैं भी वहां ठहरा हूं. तो उसका मीनिंग क्या है? मैं भी इस रूम में ठहरा हूं, मतलब कोई और भी है. और अगर ऐसे मैं बोलूं कि मैं उस रूम में ठहरा हूं, आप अकेले यू आर देयर.
But that's what Krishna is saying in this shloka, that I am also there. Api, cha api. I am also there with that the soul and super soul. तो ये हम लोग को समझना चाहिए कि two are there. It is not like one. वो एग्जाम्पल देते हैं बर्ड्स का, दो बर्ड्स का देते हैं. आप लोगों ने देखा होगा कि एक बर्ड है वो जो फ्रूट खा रहा है और एक बर्ड जो है वो सिर्फ ऑब्जर्व कर रहा है. तो ऑब्जर्व करने वाला दैट इज सुपर सोल एंड फ्रूट खाने वाला दैट इज सोल. तो वेट कर रहा है कभी मेरे पास टर्न करेगा, कभी मेरे पास देखेगा, कभी मेरे तरफ मेरी बात मानेगा. वेटिंग टिल लॉन्ग 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 टाइम द सुपर सोल इज वेटिंग देयर. इतने मर्सीफुल है कि कहीं पे भी जाते हैं आप उसके आपके पीछे पीछे आ जाते हैं. दैट मच लॉर्ड लव्स अस. हम लोग अगर नरक में भी जाते हैं वहां पे भी आते हैं वो, फिर स्वर्ग में जाते हैं वहां पे भी आते हैं, या तो किसी कीट कीटाणु सर्प या अधम योनि में जाते हैं तो वहां पर भी हमारे साथ पीछे पीछे आ जाते हैं सुपर सोल के रूप में, परमात्मा के रूप में. सो ही लव्स अस सो मच. वेट कर रहे हैं कि कभी मेरी तरफ मुड़ेंगे, कभी तरफ मेरी भक्ति करेंगे. सो दैट्स व्हाट इज गिवन इन दिस थर्ड श्लोका. हम लोग फोर्थ पे जाते हैं. हाँ, बहुत छोटा है, सो वी विल टेक दिस. हाँ, यस. You said that the God takes care of everything and all, and He also take care of your whatever the duties you are performing. Your question I am not clear. Like the God sees everything, whatever the things you are doing. What you will get later. And as a human being, we know that whatever the past mistakes in our life we do, we remember and we learn from our mistakes. Right? So based on this concept, so what if the God will give us the memory of the previous birth, so that the people who have done some mistakes, so he can remember that thing that we have done this mistake and get all this activity, this punishment. So we should not do the same thing in the next world. आप कह रहे हो कि पिछले जन्म का सब याद है. हाँ, एटलीस्ट पर्सनल तो याद रहे कि हाँ ये मिस्टेक किया था तो ये वो भगवान की कृपा है कि याद नहीं है. अगर याद हो गया ना तो हम लोग इसी लाइफ में मिजरेबल हो गए. वो पहले के सारे आप दुख कम है तो पहले के दुख याद आएंगे सारे. वो सब टेंशन, वो सब प्रॉब्लम, और वो जो पत्नी का कुछ हुआ है, छोड़ के गई, या पत्नी पेट में घुसा दी है चाकू, पता नहीं क्या हुआ है, तो सब याद आ जाएगा. या किसी ने कुछ मदर नहीं किया तो फादर नहीं, या कुछ समथिंग ऐसा कुछ भयानक हुआ है, वो कृपा है, वो हम भूल गए हैं. वो दुख से बाहर आ गए, क्योंकि दुखालय में शाश्वतम इस बॉडी में नहीं है, सारे बॉडी में है. एवरी बॉडी, ईच एंड एवरी बॉडी. तो हम लोग को वो भूल गए हैं. वो भगवान की कृपा है. कभी कभी याद हो जाता है. वो कुछ रेयर सोर्स हुए, बहुत रेयर होते हैं जो को याद होता है कि मैं इस जन्म में इधर था. कुछ हमारे इस्कॉन में भी ऐसे कुछ हैं, उनको याद था. तो सबको याद नहीं. वो दैट इज द मर्सी ऑफ गॉड कृष्णा. हम लोग को बिलीव करना है भगवद गीता के ऊपर, श्रीमद् भागवत के ऊपर, भक्तों के, साधुओं के से जिस जो भी समझाते हैं, बोलते हैं, तो उसके ऊपर फेथ होना चाहिए कि मैं ऐसा करूंगा तो ऐसा होगा. मैंने पहले जब पुनः पुनः चर्वता चर्वनाना अगर बोल दिया है ऑलरेडी, किसने बोला है? प्रहलाद महाराज ने पुनः पुनः चर्वता चर्वनाना खाए के पुनः पुनः बार बार वही आप च्यू कर रहे हो, च्यूइंग द च्यू, तो ऑलरेडी बोल दिया. तो हम लोग ये ऑलरेडी कर चुके हैं, बहुत कुछ कर चुके हैं. सो ये हम लोग को फेथ होना चाहिए. लेकिन आपका थॉट अच्छा है कि पता होता तो, लेकिन वो बहुत डेंजरस भी, बहुत डेंजरस भी. भगवान की कृपा है, भूल गया. आगे फ्रेश शुरू करो इसी जन्म में अच्छे से, और भूल जाओ जो कुछ हुआ है. अच्छे से भक्ति में प्रगति करो. जब आप जाओगे ना ऊपर में, तब आपको सब याद आएगा. नारद मुनि को सब याद था. नारद मुनि, ही बिकेम नारद मुनि, ही वेंट टू गोलोका, फिर वापस आए प्रीचिंग करने के लिए. तब नारद मुनि को पूछा कि आप कैसे बने, ये आपको लेवल कैसा प्राप्त हुआ? तो उन्होंने तो सब बताया. पहले जन्म में मैं ऐसा मेड सर्वेंट का सन था, और फिर मेरी
वो सेवा करती थी तो मैं असिस्ट करता था, फिर मैंने उनका झूठा खाया, सिर्फ उनका सेवा किया, फिर मेरी माँ मर गई, फिर मैं अकेला हो गया, फिर मैं भटकने लगा, फिर मैंने ध्यान करेगा तो मेरे को भगवान दिख गए, फिर भगवान का अनाउंसमेंट हुआ कि इस जन्म में तुम मेरे को नहीं देख सकते, फिर मैं तो भगवान की कृपा थी कि मैं तीव्रता से उनको प्राप्त करने की प्रयास करूं, तो मैं पूरा मतलब अच्छे से ध्यान करके फिर भगवान को प्राप्त किया। फिर वो भक्तों की कृपा से, मेरी मदर की कृपा से, उनके उच्चिष्ट खाने से मैं नारद मुनि बन गया। तो आप भी जब गोलोक जाओगे कभी प्रीचिंग करने तो आप सब बताओगे नहीं ये जन्म में ये था, ये जन्म में ये था, तब आपको सब याद आएगा, आप क्या क्या कांडा काला कांडी सब याद आएगा, ये किया मैंने, ये किया मैंने, ये, लेकिन अभी नहीं। When you will go there, you will remember. ये मैं इस ग्रुप में आया PYC में, तो PYC में मेरे को ट्रेनिंग मिला, फिर मैं भक्ति में आगे बढ़ता गया, सेवा करते गया, फिर बाद में अच्छा प्रीचिंग किया और आज मैं गोलोक में हूँ। So you will remember everything that date when you will reach there. ठीक है, so हाँ हम लोग ट्रांसलेशन श्लोका मैंने पढ़ा ना? No. ठीक है, अभी till how long I can go because I have to do little kirtan also. Why 10 minutes? उसमें कीर्तन भी फिनिश। ओके ठीक है, फोर्थ हम लोग ले लेते हैं। हाँ यस तो ये जो श्लोक है रिगार्डिंग कि मेरे फील्ड ऑफ एक्टिविटी है बॉडी, हाँ और दूसरे की बॉडी में क्या चल रहा है वो मुझे पता है। हाँ तो कुछ लोग ये है जो दावा करते हैं कि वो फेस रीडिंग कर सकते हैं, माइंड रीडिंग कर सकते हैं, तो वो क्या चीट कर रहे हैं कि पूरा डिटेल नहीं समझ सकते हो, पूरा डिटेल नहीं मालूम, वो सिर्फ भगवान का। ओनली लॉर्ड कैन अंडरस्टैंड क्या चल रहा है एट द मोमेंट। एक सिद्धि है जिसमें आप मन का जान सकते हो क्या चल रहा है, एक सिद्धि है अनुमा, लघिमा, महिमा, वो 8 सिद्धियां जो है उसमें वो सिद्धि प्राप्त हो जाती है, लेकिन वो सिद्धि के लिए भी बहुत सालों तक कड़ी तपस्या करनी पड़ती है, तब जाके प्राप्त होता है। आराम से कोई घर पे बैठा है और मैं फेस रीडिंग करने वाला, उसने कौन सा तपस्या की है माइंड का रीड कर सकता है? नो, इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल, वो चीटिंग है। एक्चुअली द वर्ल्ड इज फुल ऑफ चीटर्स एंड चीटेड, दैट्स व्हाई वी फील ये जानता है, लेकिन वो एक्चुअली नहीं जानता, सब कुछ नहीं जानता। थोड़ा सा बता देगा जो हुआ है लाइफ में, कि आप पहले आपके जीवन में ये संकट आया था, या आप मरते मरते बचे, या ऐसा कुछ सब कुछ हुआ, ये हुआ था, सही में हुआ था, लेकिन फ्यूचर कुछ हुआ ऐसा नहीं, वो प्रीवियसली जो भी हुआ है वो सब बता सकता है, बट ओनली लॉर्ड कैन अंडरस्टैंड एक्जैक्टली व्हाट इज देयर। बाकी फेस रीडिंग, माइंड रीडिंग, फेस रीडिंग में वो भी फ्यूचर नहीं प्रेडिक्ट कर सकता, आपका नेचर बता सकता है कि आप ऐसे हो, आपको इस चीज की बहुत लत है, आप बहुत स्मोकिंग में आपका ये है, या जो भी है, आप बहुत गुस्सा करते हो, आप अगर किसी बात पे अड़ गए तो आप उसी पे अड़ जाते हो, आप किसी की मानते हैं, तो ये फेस रीडिंग है। इससे क्या फायदा? वो तो थोड़ा सा रीडिंग की है कि थोड़ा सा कट इधर से, थोड़ा सा ये, थोड़ा सा एब्रो, ये वो, तो वो दैट इज नॉट वेरी बिग थिंग। तो फेस रीडिंग कर सकते हैं, बट लेकिन वो ग्रेट अचीवमेंट नहीं है। माइंड रीडिंग, फेस रीडिंग तो थोड़ा सा समझ सकते हैं, पूरा डिटेल में नहीं जान सकता व्यक्ति, थोड़ा समझ सकता है माइन्यूटली। ओनली लॉर्ड कैन अंडरस्टैंड एवरीथिंग। ये छोटे एंजॉयर है, पुरुष है, विच आर नॉट देयर, तो चीटिंग ही है वो एक तरफ से। आई एम एबल टू आंसर योर क्वेश्चन। और किसी को कुछ बोलना है, पूछना है? यस हाँ। Prabhu, you gave the example of Dhritarashtra. So, due to the killing of an ant, he has to suffer the problem of blindness. So, Prabhu, in this life, even by killed many ants. At every moment he commits a sin. So, Prabhu, how can we overcome the situations and what precautions can we? अच्छा है, आपको तो पता तो है ये चीज। एक डिवोटी था, चैंटिंग कर रहा था, बैठा हुआ है, उसको क्या पता वो क्या लगा, उसको ट्रांसेंडेंटल है वो कोई, हरे कृष्णा, ये चिट्ठी दिखी उसको, हरे कृष्णा, चिट्ठी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। वे प्रभु क्या कर रहे हो?
प्रभु जी मैं हरे कृष्णा बोल रहा हूँ, मार रहा हूँ, बोलो क्या है? बोला प्रभु आप क्या कर रहे हो, कौन से शास्त्र? ऐसा थोड़ी, वो प्रभुपाद जी ने बोला है कि आप चैंटिंग करते हो, वो लोग सुनते तो फायदा होगा उनको, मारना लेकिन आप जोर से चैंटिंग करो, चीटी कीटे जो भी है वो सुन के वो लोग, उनको फायदा होने वाला है आगे जाके। किलिंग देम, यू आर डिस्टर्बिंग देयर कर्मा, उनको वापस वो चीटी में आना पड़ेगा, उनका वो रिएक्शन पूरा नहीं होता है तब तक उनको रहना पड़ेगा। आप डिस्टर्ब कर रहे हो उनका ये, उनको जितना टाइम उस बॉडी में रहना है उसको रहना पड़ेगा, तो वापस चीटी बन के उतना समय वो कंप्लीट करेंगे, फिर अगले डेस्टिनेशन में जाएंगे, तो यू आर डिस्टर्बिंग देयर बॉडी। तो ऐसा नहीं करने का, तो उसको समझा है, तो एटलीस्ट आप बोल रहे हो कि मेरे से हो रहा है। तो देखिए हम लोग जब सांस लेते हैं तो बैक्टीरिया या कीटाणु है, वायरस जो भी है वो मरते हैं। When we walk, there are so many living organisms, small which we can see। अभी मैं ऐसा हाथ रखा हूँ तो भी छोटे छोटे इधर भी होते हैं, वो भी मर जाते हैं। जब हम खाना पकाते हैं तो वो अग्नि से उधर हवा में जो होते हैं वो मर जाते हैं, राइट? गर्म करते हैं जो भी है, या तोड़ते हैं, उसमें भी बहुत सारे जीव उधर होते हैं, वो मर जाते हैं। तो एवरी टाइम व्हेन वी आर डूइंग, हम लोग को कर्मा लगी रहे, कंटिन्यू कर्मा लग रहा है हम लोग को। तो इसमें कृष्ण यही कह रहे हैं कि अपने सारे कर्म को जो है ना मुझसे जोड़ो, फिर तुम कोई भी कर्म का बाधा नहीं लगेगा। You know, you will not suffer any reactions of any karma when you do each and every karma for me। मुझे ऑफर करके करोगे तो। अर्जुन बोलते हैं मेरे को ये पाप लगेगा, मैंने इसको मारा, अंकल को मारा, ग्रैंडफादर को मारा, भाई को मारा, मेरे ब्रदर्स है, इनको मार के मैं नरक जाऊंगा। कृष्ण बोल रहे क्या बड़बड़ रहा है, क्या कुछ भी बढ़ रहा है तू, मैं जो बोल रहा हूँ वो सुन, तू मार, तुझे कोई रिएक्शन नहीं लगेगा, बिकॉज यू आर डूइंग इट फॉर मी। अगर तू खुद ही अपने मनमाने ढंग से किसी को भी जाके मारेगा तो 100% तेरे को मिलेगा, लेकिन अभी तू कर रहा है मेरे लिए, मेरे सेटिस्फैक्शन के लिए, इसीलिए कर्म का तो लगता ही नहीं, बंधन ही नहीं है तुम लोग को। ये प्रिंसिपल ही मतलब ये बैठता ही नहीं है शास्त्र के इसमें। व्हेन वी डू समथिंग फॉर लॉर्ड कृष्णा, फॉर द हैप्पीनेस ऑफ द सेटिस्फैक्शन ऑफ लॉर्ड कृष्णा, कोई भी कर्मा लगता नहीं, कोई भी कर्म। बट व्हेन वी आर इंडिपेंडेंट अलोन, देन एवरीथिंग कर्मा लगेगा। सो पहला का हुआ वो हो गया, चलो आगे भी कॉन्शियस। हम लोग ने पहले बहुत किया है, बहुत मारा है, तो नाउ वी हैव टू बी कॉन्शियस। प्रभुपाद से इसके आप घर को क्लीन रखो, और क्लीन रखेंगे तो होगा नहीं, और नेट में सो, ऐसे सब बताते हैं। और सी लिविंग फॉर लॉर्ड कृष्णा मीन्स यू नो योर ईच एंड एवरी एक्टिविटी इज फॉर लॉर्ड कृष्णा। आपका मन जो है ना कंटिन्यूसली भगवान में लगा हुआ है। कृष्ण जो है ना अर्जुन को बहुत बार बहुत श्लोकों में बोलते हैं मन बना, अपना मन मुझ पे लगाओ, अपना मन मुझे दो, अपने मन को हमेशा मेरा चिंतन करो। एवरी टाइम, इन मेनी टाइम्स इन द भगवद गीता कृष्ण इज रिपीटिंग दिस, मन लगाओ, अपना मन लगाओ। तो इस शरीर से कुछ भी हो फिर फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मन हमारा अगर हमेशा कृष्ण में लगा हुआ है ना, सो कोई भी कर्म का बंधन नहीं लगता, बिकॉज वी आर completely always engaged and engrossed in the thoughts of Lord Krishna, and we are doing activities for the pleasure of Lord Krishna। तो हम लोग को कोई भी कर्मा नहीं लगेगा। आप उठोगे, नहाओगे, because you want to go in the temple, you are walking but you are going in the temple, or you are chanting, you are eating food, you are offering to the Lord। यज्ञ शिष्टो सिनो संता मुच्यन्ते सर्व किल विषय भुंजन लेते अगम पाकम, ये पच्छन्ति आत्म कारणवत्। जो भी अपने सेटिस्फेक्शन के लिए खाता है उसको पाप लगता है। कृष्ण बोलते हैं जब आहुति देकर खाता है, ऑफर करके खाता है, उसको कोई पाप नहीं लगता। सो लाइक दैट वी ऑफर एवरीडे फूड टू लॉर्ड कृष्णा, उससे सारे न्यूट्रलाइज हो जाते हैं रिएक्शन, मतलब उसमें कोई भी कर्मा नहीं होता है। सो व्हेन वी ईट वी गेट वी एलिवेट आवरसेल्फ टू कृष्णा कॉन्शियसनेस। हम लोग का आगे भक्ति में आगे बढ़ते हैं हम लोग। सो प्रसाद हम खाते हैं, फिर अवर एवरी थॉट एंड एवरी वॉक एंड एवरी whatever we do it for Lord Krishna। फिर कोई कर्मा नहीं करता है। हम लोग सोते भी है, we are sleeping so that I want to give rest to this body so that I can get up and I will start chanting the holy name of Lord Krishna। तो ये थॉट है, थॉट में हमेशा कृष्ण बसे हुए हैं ना, तो फिर कोई कर्मा है ही नहीं, there is no karma।
थोड़ा थोड़ा होता रहेगा, चल रहे आप कुछ मर गए, अभी क्या कर सकते हैं, हेल्पलेस है, यू आर हेल्पलेस। बट अगर इतनी बड़ी चींटी दिख रही है तो नहीं पैर डालने का, तो साइड में पैर डाल के डालने का, पर्पसली नहीं मारने का। अगर नहीं है लेकिन मतलब हेल्पलेसली हो रहा है तो इट्स ओके, लेकिन पर्पसली नहीं करने का। डिवोटीज आर ऑलवेज कॉन्शियस। वो भागवतम में ये है कि वो जो जड़ भरत थे, नहीं मृगारी जो था, वो ऐसा पैर करके चल रहा था, तो पूछा ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि वहां पे एंड थे बहुत सारे, तो मैं बचा रहा था। पहले सबको मार रहा था, वो हाफ किल कर रहा था, बट बाद में उसको मारने की इच्छा नहीं हुई। तो डिवोटीज दे आर कंपैशनेट, दे डोंट वांट टू किल, दे डोंट वांट टू हार्म एनीवन। सो मैं तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर दे पा रहा हूँ। आप कौन आ रहा है, सांप आ रहा है आपको मारने? मॉस्किटोज। हाँ, अगर मॉस्किटोज अगर आता है तो उसको बोलो मत मारो मुझे, मत काटो। देखो अगर मॉस्किटोज आ रहे हैं ना, तो प्रभुपाद जी ने एक बार हुआ था ये ऐसा कि वो अपनी क्या बोलते हैं उसके स्टिंग, वो स्टिंग नहीं, वो जो सुली होती है, इतना स्ट्रॉन्ग होता है उसका। ही इज ट्राइंग टू अटैक मी, दोज कमिंग विद द वेपन्स यू कैन किल। तो फिर वो बोलो मारो उसको, ही इज ट्राइंग टू अटैक मी। फिर वो डिसाइपल ने फिर ऐसा फॉलो किया, लेकिन दैट इज प्रभुपाद, वो अलग है। लेकिन हम लोग को एज फार एज पॉसिबल वी हैव टू अवॉइड। आप देखो कभी मच्छर मंदिर में नहीं रहे, मंदिर में आप रहते हो ना, तो हम लोग बहुत साधु बन जाते हैं। मच्छर उठ के उधर बैठ जाएंगे थोड़ा सा ऐसे जगह, लेकिन वही घर पे रहेंगे कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सब भक्तों के सामने हम साधु बन जाते हैं। देयर वी डोंट वांट टू किल एनीवन। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि ये नहीं मारना है, लेकिन अकेले तो कौन देख रहा, मार दिया। तो वैसे भी है। तो मैं एक बार IWF में नीचे सोया हुआ था, तो एक डिवोटी थे, बहुत पुराने, बहुत सीनियर थे। उन्होंने मेरे को मकड़ी है जो होता है ना, बेड बग जो होता है, बेड बग क्या बोलते हैं, खटमल ला के दिया। बोला कि इसको एकदम दूर फेंक के। बोला मैं सोया हूँ, इसको उठ के मैं जाऊंगा, मेरी नींद खराब करूंगा। तो ये खुद क्यों नहीं फेंक रहे, मेरे को अभी दिया ये इसके खटमल बाहर फेंकने। मैंने उसको रखा, वो चले गए ना, मैंने ऐसे कर दिया उसको। फिर वो 1 सेकंड में वापस आए, ये फेंका तो नहीं, मैंने उसको मार दिया। कौन जाएगा इतना लंबा यार, व्हाट यू डू, आई गिव यू फॉर दैट टू किल। सॉरी, और एकदम डिस्टर्ब हो गया, अंदर चले गए। सो मैं ये एग्जाम्पल क्यों बताया कि डिवोटीज दे आर लाइक ऑलवेज केयरफुल फॉर किलिंग एनी लिविंग। बहुत गोपाल कृष्ण महाराज भी एक बार जब गाड़ी में जा रहे थे, तो दूर से एंड्स का वो एक ये था, तो उन्होंने दूर पे गाड़ी रोक दी, बोले कि वेट डोंट गो अहेड। तो आगे एंड्स का वो वारुल क्या बोलते हैं उसको, एंड हिल, तो वो है, तो बहुत सारे एंड्स है वहाँ पर, तो हो जाएंगे, हम चल के जाएंगे यहाँ से, तो विल नॉट गो। सो लिविंग एंटिटीज को किल, मतलब डिवोटीज आर ऑलवेज कॉशियस, कोई भी ना मरे। इवन दो मच्छर भी आते हैं, उनके लिए भी कंपैशन होते हैं। तो वी हैव टू कम टू दैट लेवल। आप देखो आप कैसे अवॉइड कर सकते हो उस चीज को, मॉस्किटोज से। बट शास्त्र के अनुसार वी हैव टू लाइक बी वेरी कंपैशनेट एंड नॉट टू किल एनी लिविंग एंटिटी। आई एम एबल टू आंसर योर क्वेश्चन? ठीक है। एनीबॉडी एल्स वांट्स टू से समथिंग? Okay, so we covered 3 shlokas today. 1, 2, and 3. So fourth one we can be
next time, next Sunday can be taken. Now we'll have some short kirtan. Is there any Mridang player over here? You don't play Mridang? Learn Mridanga. Devotees should know everything. Cooking, playing instruments, preaching, everything. You should be expert in everything. To learn Mridanga. Namo Vishnu Padaya Krishna Krishna Gurudeva Vishnu Bhakti Vedanta Swami Namaste Saraswati Bhagavani Krishna Vishnu Krishna Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. Karta, is Karta?
patiently hearing. So see you again next time. Srila Prabhupada ki Jai. Okay, so very important announcement. Completely forgotten to tell this very important thing. So this month is December month, and it is also called as marathon because Lord Krishna spoke Bhagavad Gita in this month. So it is very auspicious. So all over the world in ISKCON we celebrate this as Gita Marathon. So we distribute as many Gitas as possible. You must have seen in the railway stations, outside, we put stalls and we do. So our BYC, we have taken target of distributing 1 lakh Bhagavad Gita. And that too, in freely in schools and different remote villages we go and we distribute in schools, municipality schools in remote villages we distribute freely. In the next week in Bhiwandi, in 3-4 schools we are going to go and distribute like thousands of Gitas freely next week. So, so 1 lakh we are planning to do. And so every Sunday we have decided to go for all our congregation devotees and for youth also. They can also come and join. Evening 5 o'clock we'll be going to Juhu Beach. Juhu Beach where that Shivaji Maharaj statue is there, the main Juhu Beach. There we'll be putting our stall. The books will be there. You can take books and we can go out and you can approach people. So even though they don't take, it doesn't matter. You are coming over there and participation is important. Lord Krishna will be seeing that how much eager he is to distribute this knowledge. Krishna said in Bhagavad Gita at the end that the one who distributes this knowledge, gives this knowledge to others, he is the most dear to me and there will be no person more dear to me than him, the one who distributes this knowledge. So there is opportunity for all of us to become dear to Lord Krishna by distributing this knowledge to all the fallen souls. Because we read Bhagavad Gita, that's why we are here. So we should always have compassion to all the living entities and try to give them Bhagavad Gita. So even they don't take, don't get morose, don't get disappointed. Krishna is saying, Prabhupada is saying, the whole Guru Parampara is saying that he is trying. And if we sincerely try, then Krishna will definitely send someone who will take our Bhagavad Gita. So participation is very, very important and it is also very purifying. And Prabhupada's most dearest activity and service is this book distribution. So when we have opportunity, we should go and take advantage of this. And when all the devotees are there, it becomes very easy going with devotees and having fun. तो आप लोग जब आओगे आज डायरेक्ट आप जुहू बीच आ सकते हो या तो यहाँ से डिवोटी जाएंगे उनके साथ जा सकते हो. So put tilak, that will be nice. ऐसे ही मत आना. तो तिलक थोड़ा सा लगाओ जो भी आता है, क्योंकि आप किसी को अप्रोच करोगे उसको लगना तो चाहिए कि डिवोटी है, इज सम डिवोटी कमिंग फ्रॉम टेंपल. लेकिन ऐसे ही जाएंगे तो ठीक है, अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है देन यू केम लाइक दैट हो गए. लेकिन तिलक रहेगा तो अच्छा है. और थोड़ा सा कुर्ता पहना है, नीचे पैंट है चलेगा, लेकिन कुर्ता पहना है या तो नहीं है तो फिर ऐसे आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट सम डिसेंसी शुड बी देयर सो दैट पीपल कैन हियर यू. They can like you, अरे यार somebody from ISKCON, somebody from devotee is talking to me, ऐसा उसको फील हो. ठीक है, तो आप सब लोग आइए. आज अपने इनसे सौरभ प्रभु से आप कोऑर्डिनेट कीजिए कि he is the coordinator and will tell you how and when. तो कोई भी तकलीफ है कैसा करना है तो I will also be there. There will be other devotees also. You can take help from them. करके दिखाओ, थोड़ा बोल के दिखाओ, ऐसा something you can learn. और कोई सीनियर कर रहा है तो उसके साथ रहो और देखो कैसे कर रहे हैं और सीखो, अच्छा लगेगा. एक बुक जाएगा, इतना सेटिस्फेक्शन मिलेगा. So pleasing it is to the heart when you give one book to somebody. So please come and take
opportunity of this wonderful program, book distribution. और कुछ बोलना है आप बोलिए. That's it. ठीक है. Okay. श्री प्रभुपाद की जय.